Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and safe at home and doing your studies well. Okay, because along with the taking care of your health and along with playing, studies is also important. Okay. So children, I am back with the new lecture. This lecture is for class 5. Subject is English grammar. It is from chapter 2, subject and predicate. Earlier we did this chapter in lecture number 9 and lecture number 2 for same chapter. Now it is from your book PC Ren's Grammar. It is our lecture number 3 for the same chapter. So let's start children with the lecture. In previous lecture we did exercise 1. Now in this we are going to do exercise 2 and it is last exercise of the chapter. Okay, so let's start. Rewrite these sentences changing the order of the subject and predicate. आपको sentences को subject and predicate का order change करके दोबारा से लिखना है. ओके, हमें क्या करना है, नाउन प्रोनाउन को ढूंढ कर आगे लाना है, उसके बाद हमें बाकी चीजों को रीअरेंज करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट and see how to do. If you have books children, then do them in your book chapter 2 exercise 2. If you don't have books, then do them in your rough notebook, and when you will get your books you can copy the same in your book. Okay, let's start. Never again will you do that. I have found a pronoun here, that is you, so I have made it a subject. मैंने इसको subject बना दिया. You will never do that again. तुम उसे दोबारा कभी नहीं करोगे या तुम वह कभी नहीं करोगे. Rarely have I eaten better food. I is a pronoun. I have made it a subject. मैंने इसको subject बनाया. I उसके बाद helping verb फिर verb. I have eaten better food rarely. Hardly ever does he come to school on time. Okay, किसको subject बनाया है मैंने? He को. Now see, he had hardly ever come to school on time. Up jumped the frog. Okay, who is the subject here? Frog. The frog jumped up. Subject कौन है? Frog. The frog. Never have I seen such a mess. I को pronoun को लेकर के subject बनाया है मैंने. I is the subject. Have never seen such a mess. मैंने इतना mess कभी नहीं देखा. Scarcely had I stepped out when the telephone rang. Okay, I को subject बना दिया. I had scarcely stepped out when the telephone rang. Hardly had I reached the station when the train departed. कैसे बनाया? I pronoun है. ओके, प्रोनाउन को मैंने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, बाकी सारा अरेंज किया. I had hardly reached the station when the train departed. मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था जब ट्रेन ने स्टेशन डिपार्ट किया या जब ट्रेन चल पड़ी. No sooner had she heard the news then she started crying. It will remain same. No sooner had she heard the news then she started crying. Here comes the chief. मैंने the chief को subject बना दिया. The chief comes here. In the race remained the 15 cars. इस कार में 15 इस रेस में 15 cars हैं. 15 cars remained in the race means रेस में कितनी कारें रही? रेस में 15 cars remain रही. Okay, children, as you know,
After ending each lecture, I give you homework. So, in this also I am going to give you homework. This is not from any of your book exercise. ये आपकी किसी भी बुक एक्सरसाइज में से नहीं है. ये मैंने आपको खुद से दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ओके, यू कैन राइट देम इन योर रफ नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस. ओके, एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. समझिए होमवर्क को, फिर इसको लिखकर ऑल ऑफ यू कैन डू. Rewrite the sentences to make meaningful sentences and underline the subject. इन sentences को दोबारा लिखिए to make meaningful, इनको meaningful बनाने के लिए and underline the subject, और उसको rewrite करने के बाद subject को underline कीजिए. देखिए, let's start. Likes Jack eat fruit too. कोई सेंस बना? नहीं. आप इसको दोबारा से लिखेंगे, फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, फिर उसमें सब्जेक्ट ढूंढकर उसको अंडरलाइन करेंगे. ओके, सचिन बैट्समैन ग्रेट इज अ. नो सेंस इज देयर. मेक इट मीनिंगफुल. मैरी अ प्लांटेड ट्री इन गार्डन हर. ओके, इसको ठीक करना है. एलिफेंट्स स्ट्रॉन्ग आर एनिमल्स. मंथ इज जनवरी दी फर्स्ट कोल्ड. ठीक करके लिखना, फिर सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना. फर्नीचर दी मेड ओक दी ऑफ वॉज इन डाइनिंग रूम. हाउस कैनल कोल्ड अ डॉग्स इज अ. पायलट मैन एंड दी इज हु एरोप्लेन द फ्लाइज अ. ठीक करना, फिर सब्जेक्ट ढूंढकर अंडरलाइन करना. ओके चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, आफ्टर डूइंग एवरी लेक्चर एंड असाइनिंग यू द होमवर्क, मैं आपको हर लेक्चर पढ़ाने के बाद, होमवर्क समझाने के बाद आपको पुराने होमवर्क का सॉल्यूशन बताती हूँ पिछले लेक्चर का. सो दिस इज आवर होमवर्क सॉल्यूशन फ्रॉम लेक्चर नंबर 2. हमारे लेक्चर 2 का होमवर्क सॉल्यूशन है. लेक्चर 2 किसका? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का. ठीक है, इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको जो सेंटेंसेस दिए थे उसमें सब्जेक्ट को अलग करना था, प्रेडिकेट को अलग. हमने कुछ सेंटेंसेस कर लिए थे एंड सम आई गेव यू एज होमवर्क, और कुछ आपको मैंने होमवर्क में दिए थे. सो लेट्स सी, देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है. शिरीन्स मदर इज इल. यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? हु इज इल? शिरीन्स मदर. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, इज इल इज प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है. द ओल्ड वुमेन लुक्स अनहैप्पी. दी ओल्ड वुमेन इज सब्जेक्ट, लुक्स अनहैप्पी प्रेडिकेट. दी लिटिल लैम्प फॉलोड जेन एवरीवेयर. हु फॉलोड जेन एवरीवेयर? लिटिल लैम्प. सो लिटिल लैम्प इज द सब्जेक्ट, फॉलोड जेन एवरीवेयर इज द प्रेडिकेट. हियर कम्स दी बॉयज. मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी हमारा सब्जेक्ट पीछे भी होता है. सो इसमें सेम हमारे पास है कि हमारा सब्जेक्ट पीछे है और प्रेडिकेट आगे. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है कि कौन आ गया? बॉयज आ गए. ओके, सो दी बॉयज हमारा क्या है? सब्जेक्ट. हियर कम इज द प्रेडिकेट. ओके, इसमें सब्जेक्ट पीछे है और प्रेडिकेट पहले. लिटिल हरी इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास. सो किसके बारे में बात हो रही है? हु इज क्लेवरेस्ट इन द क्लास? लिटिल हरी. ओके, ये सब्जेक्ट है. इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये क्या है? प्रेडिकेट. ओके चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन. इसको अपनी बुक में लिखना है आपको, एक्सरसाइज 1 में. और आज का जो होमवर्क है एक्सरसाइज 2, जो आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाया, उसको बुक में लिखना है. इफ यू डोंट हैव इन योर रफ नोटबुक, अगर नहीं है तो रफ नोटबुक में, और इन सभी को आपको करेक्टली अपनी बुक में या रफ नोटबुक में जो भी आपके पास अवेलेबल है वहां पे नोट डाउन करना है. ओके चिल्ड्रन, एंड टुडेज होमवर्क, क्योंकि ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है, आपको रफ नोटबुक में करना है. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.